المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وقلت حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین من کنت مولاه فهذا علی المولا صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ماتم داران سید الشہداء، بزرگواران ملت، برادران ایمانی، زمین پہ بیٹھ کے شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے والوں اور اس تپش میں بھی آرام، چین اور سکون کا ذائقہ محسوس کرنے والوں، اگر ہم انسانوں سے یہ کہا جائے کہ بھیا ایسا ہے کہ آپ تھوڑی دیر ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائیے، تو کوئی بھی انسان ہوگا وہ بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، کہے گا مولانا خیریت تو ہے، میں کیوں، میرے حیثیت کے مطابق آپ مجھے جگہ دیجئے، تب میں آپ کے اس جگہ پہ بیٹھوں گا، پسند کروں گا، آپ مجھے زمین پہ نہیں بیٹھا سکتے اور نہ ہی میں بیٹھوں گا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ صرف یہ کرامت اہل بیت ہے، یہ معجزہ اہل بیت ہے، یہ معجزہ محبت اہل بیت ہے کہ ہمیں جہاں کہہ دیا گیا بیٹھنے کے لیے ہم وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اگر ہمیں توجہ رکھیے، تھوڑا سا دو چار جملے میں گزارش کروں گا، بہت ہی ادب سے دست ادب جوڑ کے اپنے یہ نوجوان بھائی میرے بزرگ حضرات، اگر ان کو کوئی پریشانی نہ ہو تو ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائے۔ دیکھیے لطف تو وہی ہے کہ جب ذکر علی سر چڑھ کر بولتا ہے اور ساتھ میں علی والے بھی بولیں تب مزہ ہی کچھ اور ہے۔ آئیے میں جلدی سے انشاءاللہ فضائل کو ختم کر کے ربط مسائل کی طرف انشاءاللہ گامزن ہوں گا۔ میں نے جو بھی حدیث فکرہ آپ کے سامنے پیش کیا اس میں رسول اللہ نے فرمایا کون نبی جس کے کہنے سے نماز نماز ہے، کون نبی جس کے کہنے سے روزہ روزہ ہے، کون نبی جس کے کہنے سے حج حج ہے، کون نبی جس کے کہنے سے زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، یا اگر لفظوں کو بدل کر کہہ دیا جائے کہ اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے کہنے سے ہم نے آدم کو نبی اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے یوسف کو صفی اللہ مانا، یہ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے جس کے کہنے سے ہم نے ابراہیم کو خلیل اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے کعبے کو بیت اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے قرآن کو کتاب اللہ مانا۔ یہ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ دیکھیے یہ سقیفہ والے جو چند دن کے بعد دامن اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہیں اس لفظ مولا سے تھوڑا سا مخالفت پیش ہونی پڑی، انہوں نے مخالفت کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ مولا کا لفظ ان سے ہضم نہیں ہوا۔ پتہ یہ چلا یہ رسول سے دشمنی نہیں تھی، توجہ رکھیے، یہ واحد پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ رسول نے مولا کہا ہو، بلکہ اس سے پہلے ایک ایسی شخصیت گزری ہے جس نے مولا کا لفظ اختیار کیا تھا اور مولا کا لفظ لوگوں کے درمیان میں دیا تھا۔ پتہ یہ چلا رسول سے دشمنی نہیں ہے، اگر رسول صرف کہتے تو یہ مسلمان مان لیتے، لیکن رسول سے پہلے بھی ایک ایسی شخصیت گزری ہے کہ جس نے کہا کہ مولا، جس نے بلایا مولا، کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے جناب ابو طالب نے یہ لفظ مولا کا لفظ کہا ہے، تو یہ جناب ابو طالب کی وجہ سے اس لفظ مولا پہ بحث ہے۔ کیا ہوا تھا ذوالعشیرہ میں؟ کہا جب رسول اللہ کھانے کے لیے بلاتے تھے اور اپنے کو پیغام پہنچانے کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے، جیسے ہی کھڑے ہوں کچھ کہنے کے لیے، مسلمانوں کا دستور اور اصول یہ ہو چکا تھا کہ جہاں پیٹ بھرا اس کے بعد اپنے خاندانی اصولوں پر رسول کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے، اپنے خاندانی اصولوں پر گامزن رہتے ہوئے رسول کی طرف سے اپنے چہرے کو ہٹاتے ہوئے راہ فرار اختیار کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ایک بار، دو بار، تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد ایک جملہ کہا، قم یا رسول اللہ، قم یا رسول اللہ، وَأَنْتَ مَوْلَائِ، اور آپ میرے مولا ہے، وَأَنْتَ مَوْلَائِ، اور آپ میرے مولا ہے۔ عزیزان گرامی، اس ذوالعشیرہ کے میدان میں یا اس مجمع میں جو مجمع تھا وہ صرف 40 نفر کا تھا، وہ
था। एक मरतबा हबीब खड़े होने के बाद अपने चचा जान की तरफ मुखातिब होते हैं और फिर एक जुमला इरशाद फरमाते, तवज्जो रखिएगा मेरे नौजवान भाइयों, रसूलुल्लाह ने एक जुमला इरशाद फरमाया, चचा जान आपने मुझे इन 40 लोगों के दरमियान में मौला बनाया है। आपने मुझे इन 40 लोगों के दरमियान में मौला बनाया है। और याद रखिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, गदीर का मैदान होगा, 1.25 लाख का मजमा होगा, मैं आपके बेटे को, अपने भाई अली को 1.25 लाख के मजमों के दरमियान में मौला बनाऊंगा। तवज्जो है, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह। आपने 40 लोगों के दरमियान में मुझे मौला कहा, मौला बनाया। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं अपने भाई को, आपके लाल को, आपके बेटे को 1.25 लाख हाजियों के दरमियान में मौला बनाऊंगा। अल्लाहु अकबर। और रसूल बेशक वही है जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के पहरे में रहने के बाद ही अपनी ज़बान को लुकनत देता है। जब तक वो ये इलाही का पहरा नहीं लग जाता, मेरा हबीब कुछ अपनी तरफ से कहता ही नहीं है। बेशक रसूल ने जिन जिन लोगों के लिए, जिन जिन हस्तियों के लिए इरशाद फरमाया है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। रसूल ने जिन लोगों से मोहब्बत करने के लिए कहा है, बेशक वो काबिल मोहब्बत है, वो काबिल एहतराम है। और रसूल ने जिनको अपने पहलू से भगा दिया है, वो काबिल नफरत भी है। अपने पहलू से भगाया है, हटाया है, वो काबिल नफरत भी है। और जिसके लिए कहा कि देखो इनका एहतराम करो, देखो इनको पहचान लो, देखो ये मेरी बेटी है, देखो फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए रसूल ने हर मोड़ पर, हर गली पर, हर वक्त कोई न कोई फिक्रा परवरदिगार की तरफ से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया है। और वाकई ये ऐसे सच्चे, ये ऐसे सादिक हैं कि जो चीज अगर ये अपने दहन से कहे भी ना, बल्कि अगर ये सोचे, वो चीज अमल में आ जाती है, वो चीज अमल पैरा हो जाती है। कुन फयकुन की मंजिल में रहने वाले ये हस्तियां, ये शख्सियतें, बल्कि अपने जबान से वो जुमले को अदा भी ना करे, और अगर सोच ले तो वो चीजें अमल में हो जाया करती। बस अजीजों, मुझे जहां तक आपको लाना था, मैंने अपनी तकरीर को समेटा और अपने मसाइब यहां से देता हूं। ये ऐसे सादिक हैं जो चीजें सोचें वो हो जाया करती हैं। ये ऐसे रहीम हैं कि अगर सारे इंसान दुनिया के मुश्किलात में हों तो ये उनकी मुश्किलों को हल किया करते हैं। बहुत सारी मिसाल पड़ी हुई है। अगर कोई गरीब, कोई यतीम, कोई मिस्कीन इनके दरवाजे पे आता है तो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, इतने करामत के मालिक, ये रहीम, ये करीम, कोई भी मुश्किल में हो तो ये मुश्किलों को आसान करते हैं। ये अली की बेटियां हैं। अल्लाह अकबर। जब मौला हमारे सारी मुश्किलों को आसान करते हैं तो क्या दिल तड़प नहीं जाएगा कि उन्हीं की औलादें राहे कूफा और शाम में रसन बस्ता पसे पुष्ट हाथ बंधे हुए हैं, पर्दा नहीं है, बेकजावा महमिल है और तैयार बतैयार फिराई जा रही है। मुनादी निदा दे रहा है, ये अली की बेटियां हैं, ये अली के खानदान की घर की औरतें हैं, इन्हें पहचान लो। अल्लाह अकबर। ये चादर तस्वीर में रहने वाली शहजादियां जिनके सरों को कभी सूरज ने भी ना देखा हो, वो आज मजमे अगियार में है, शराबियों के दरमियान में है और ऐसे के दरमियान में है। जाती है उस जगह पे, उस जगह ले जाया जाता है अहले हरम को जहाँ पे कनीज़ें बेची जाती हैं, जहाँ पे गुलाम तकसीम किए जाते हैं। आज़ादाराने मज़लूमे करबला आप मुसलसल मजलिसें कर रहे हैं, सुबह से अज़ादारियाँ कर रहे हैं, मुहर्रम से मजलिसें कर रहे हैं। हमारी माएँ बहनें भी हैं और जो मुसलसल मजलिसें जाती हैं और आती हैं, गिरियाज़ारी करती हैं। लेकिन ऐ मेरे अज़ादारों, मेरी माँ बहनों, आप मुझे इंसाफ से बताना कि अभी ये जुलूस खत्म होगा, ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। आप अपने अपने घरों को जाएंगी, अपने अपने बिस्तरों पे जाएंगी, आराम से, चैन से, सुकून से एक नींद लेंगी और फिर अपने जिस्म को आराम देंगी कि जिस्म थक गया होगा, वाकई थकावट का एहसास होगा। लेकिन जरा कोई शहजादी ज़ैनब से पूछे, जरा कोई उम्मे कुलसूम से पूछे, जरा कोई उम्मे लैला से पूछे, जरा कोई उम्मे फरवा से पूछे,
अरे ये तो थी मस्तूरात, जरा कोई सैयद सज्जाद से पूछे, हाय मेरा बीमार इमाम जब चला है तो पैरों में छाले पड़ रहे थे, और जब कूफा पहुंचा है ना मेरा इमाम, रवायत कहती है जब कूफा पहुंचा गया है, जब कूफे पहुंचे हैं ये अहले हरम, छतों से कुछ पत्थर फेंकते थे और कुछ आग के शोले बरसाए जाते थे। मेरे इमाम के दोनों हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, और जब इमाम के अमामे पे वो शोला गिरा है, इमाम ने आवाज दी, कोई मेरे हाथों को खोल दो, मेरे सर पे अंगारे फेंके जा रहे हैं, हाय मेरे सर का दिल जल रहा है। अल्लाह अकबर, ये अहले बैत कितने असीर हैं, कैदी बनाए गए हैं, मसाइबों का पहाड़ टूटा है। आइए अज़ादारों, मैं जल्द खत्म करता हूँ, सारे मसाइब को छोड़ते हुए आप अरबईन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप अरबईन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, चेहलुम मनाने के लिए ना। अल्लाह अकबर, ये जब अहले हरम वहाँ भी रिहा हुए हैं और एक आवाज दी है, आवाज दी गई कि चाहे आप यहाँ रह लीजिए या फिर मदीने चली जाइए। ज़ैनब ने कहा कि देखो, जब से हम कैदी हुए हैं, जब से हम असीर हुए हैं, हमने अपने चाहने वालों का मातम नहीं किया है। सुनना मेरी माँ बहनों, ज़ैनब ने फरमाया जब से हम असीर हुए हैं, हम कैदी बनाए गए, हमने अपने चाहने वालों का मातम नहीं किया है। एक मकान खाली करवा दो, लीजिए एक मकान खाली हुआ, तबरुकात आ रहे हैं, कुछ शोहदा के सर आए, अज़ादारों जिस शोहदा के सर आते रहे उससे मुतालिब खातिन उनके सर को अपनी आगोश में लेती रही। उम्मे फरवा ने जनाबे कासिम के सर को अपनी आगोश में ले लिया। अब चांद से चेहरे का सर आया, अली अकबर के सर को उम्मे लैला ने अपनी आगोश में ले लिया। अज़ादारों एक नन्हा सा सर आ रहा है, रबाब आगे बढ़ी, चांद जैसे फूल जैसे चेहरे को रबाब ने अली असगर के सर को अपनी आगोश में ले लिया। अज़ादारों, अब एक आवाज आई, कहा किसका सर है? कहा ज़ैनब के 32 बरस के गैरतदार भैया अब्बास का सर है। अब जब अब्बास का नाम आया, ज़ैनब अपने सबसे आगे निकली है, और हल्के से आगे निकलने के बाद तख्त में सर रखा हुआ है, तख्त और आगे आता है, ज़ैनब सबसे निकल के और आगे आती है। अब जब तख्त ज़ैनब के करीब पहुंच गया, एक मर्तबा ज़ैनब ने उस सर से रुमाल को हटाया, क्या देखा शहजादी ने कि मेरे भैया की आंख खुली हुई है। अब ज़ैनब ने अपने भैया के सर को अपनी आगोश में लिया, लेकिन अजीजों गज़ब हो गया, जैसे ही सर ज़ैनब ने अपनी आगोश में लिया, अब्बास ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। ज़ैनब ने आवाज दी, मेरे भैया आंखें खोलो, ताज़ियानों के निशान नहीं दिखाऊंगी, तमाचों के निशान नहीं दिखाऊंगी। हाँ अजीजों, मुख्तसर कर रहा हूं मैं मजलिस को। रवायत कहती है सैयद सज्जाद आगे बढ़े, लोगों ने सोचा सैयद सज्जाद गिरिया करेंगे, लोगों ने सोचा सैयद सज्जाद बुका करेंगे, लेकिन नहीं, सैयद सज्जाद आए। आने के बाद अपनी फूफी से कहा है, फूफी अम्मा मेरे चचा के सर को मेरे हवाले कर दीजिए। अब चचा के सर को सैयद सज्जाद ने अपनी आगोश में लिया, लेकिन अजीजों कहीं नहीं गया मेरा बीमार इमाम, बल्कि एक नशेब में जिंदान के एक गोशे में जाता है, और उस गोशे में क्या देखा कि एक नन्ही सी कब्र है। सैयद सज्जाद ने अब्बास के सर को उस नन्ही सी कब्र पे रखा और एक आवाज दी, ऐ सकीना उठो, तेरा चचा तुझसे मिलने के लिए आया है। बस अभी तो 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ मैं। ऐ सकीना उठो, तेरा चचा तुझसे मिलने के लिए आया है। हाजिरो, रोने पे पाबंदियां नहीं है, रोने पे कोई ताज़ियाने नहीं लगाएगा। सकीना जब भी रोई अपने बाबा को याद करके, तो जालिम आगे बढ़ते थे, कोई ताज़ियाने और कोई तमाचों से अज़ियत देता था। अब ये काफिला करबला जाने के लिए तैयार हुआ है। अजीजों, शाम की औरतें आ गई हैं, और ज़ैनब है, तमाम अहले हरम है, कुछ हमारियां लाई गई है, हमारियों पे कुछ रंगीन पर्दे पड़े हैं। ज़ैनब ने आवाज दी, सैयद सज्जाद इनसे कहो कि ये रंगीन पर्दों को उतार दे, स्याह पर्दे लगा दे, ताकि पता चले सैयदा के घराने की औरतें जा रही हैं, बेटियां जा रही हैं। लो अजीजों, सारी बीवियां सवार हो गई। एक मर्तबा ज़ैनब ने फरमाया, आखिरी जुमला मजलिस तमाम है मेरी माँ बहनों, जनाबे ज़ैनब ने एक जुमला फरमाया, सैयद सज्जाद करीब आओ। सज्जाद करीब आए, आने के बाद एक जुमला कहा, ऐ बेटा सारी बीवियां तो है महमिल में, लेकिन भाभी रबाब नजर नहीं आ रही है। सैयद सज्जाद तरफ आवाज दी, ऐ फूफी अम्मा मैं जानता हूँ मेरी माँ कहाँ पे
जमाने की। उठो चलो, सब अहले हरम अपने घर जा रहे हैं। ऐ मेरी लाल सकीना, घर नहीं जाओगी, सारे अहले हरम घर जा रहे हैं। सयालमुल लज़ीन सलमुल अय्युन क़ल्बी यनक़लबून बिहक़्क़ि ज़राबी हवा बाल व बनुहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म में